Hello everyone, this is lead code number 704. Question is binary search. This is a simple binary search algorithm where we are given an array and we are also given a target element. We have to search this target element in our given array. Okay, in my coming videos, I am going to upload questions related to binary search algorithm. So please stay connected with me. And if you have not subscribed to my channel, please do it. Okay, so let us see this question first. So in this example, we are given an array, okay, and we are also given a target equal to 9. Okay, we have to search this target in our given array and we have to return the index of the target. Okay, so as you can see, index of 9 is 4. So our output will be 4. So basically what we have to do, we have to apply binary search here, okay, which will take time complexity as order of log n. Okay, and a space complexity as order of 1. Okay, so before applying binary search, we have to note one thing. Your given array must be sorted array. Okay, so our given array must be sorted in ascending order or in descending order, anyone. Now see how we can apply binary search algorithm in our given sorted array. For binary search algorithm, we need 3 pointers. The first pointer is start, which will initially point to 0th index of given array. The second pointer is end, which will point to last index of the array. Okay, so we will use start and end for calculating our mid index. The formula is start plus end by 2. Okay, so our condition will be if we get our target at mid position, which will be if array of mid equal to target. Okay, if we get our target at mid position, then we got our answer. So what we will do? We will simply return mid. Okay, so this will be our first case. Case number 1. Okay, what is case number 1? If we got our target at mid position. Okay, so let us see this example. First we have to see our array is sorted or not. As we can see, our array is sorted in ascending order. Okay, and the target is 15. Now we have to search this target. Okay, so now as you can see, 15 is not present in our given array. So we have to return -1 as our output. Now we will use our start pointer, end pointer and mid pointer and we will dry run this binary search algorithm. यहाँ पर हमारा जो array है वो sorted है ascending order में. ओके, और टारगेट इक्वल टू 9 दिया गया. हमें इस टारगेट को इस एरे में सर्च करना है बाइनरी सर्च अप्लाई करके. ओके, सो हमारा इनिशियली स्टार्ट 0 को पॉइंट कर रहा है, एंड जो है वो लास्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है विच इज 5. ओके, सो मिड कैलकुलेट हम करेंगे स्टार्ट प्लस एंड बाय 2 करके. ओके, सो इस टेबल पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं या टेबल पे. ओके, सो इनिशियली हमारा स्टार्ट क्या है 0, एंड क्या है 5. सो कैलकुलेट मिड स्टार्ट प्लस एंड बाय 2 which is 5/2 will equal to 2.5 और राउंड फिगर में ले लेंगे 2 होगा. ठीक है, 0.5 को हटा देने का. ठीक है, सो 2 आया. मिड हमारा स्टार्टिंग में 2 आया. अब हम लोग पहला केस चेक करेंगे. इफ एरे ऑफ मिड इक्वल टू टारगेट, तो एरे ऑफ मिड हमारा क्या आ रहा है, ये आया. ठीक है, सो एरे ऑफ मिड जो हमारे पास क्या आया, एरे ऑफ मिड इक्वल टू 3 आया. ठीक है, ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, इक्वल टू टारगेट नहीं हुआ. पर हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, हमारा एरे ऑफ मिड है वो लेस देन है टारगेट से. ठीक है, सो यहाँ पे हमारा टारगेट जो है वो ग्रेटर देन हो रहा है एरे ऑफ मिड से. सो हमें अब क्या करना है, हमें सिंस आवर गिवन एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, सो व्हाट वी हैव टू डू, हमारा एरे ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है. सो अब हमें टारगेट को इस पोजिशन पे चेक करना है, इस एरिया में राइट साइड ऑफ द मिड. ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो ग्रेटर देन हो रहा है मिड से, लेफ्ट साइड में मिलने का कोई चांस नहीं है. ठीक है, यू कैन सी. तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, स्टार्ट जो हमारे 0 को पॉइंट कर रहा था, अब हमें स्टार्ट को मूव कर देना होगा मिड +1 से. सो अब हमारा स्टार्ट जो है वो 3 को पॉइंट करेगा. सो हम क्या किए, मिड +1 कर दिए स्टार्ट को. सो हमारा पहला केस तो ये था जो फॉल्स हो गया. सेकेंड केस हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको कंसिडर करने के बाद, इफ array of mid, ठीक है, is less than
our target, which means our target is greater than array of mid. So हमें क्या करना है, स्टार्ट को मिड प्लस 1 करना। अब हमें राइट साइड ऑफ द मिड चेक करना है। ये हमारा केस 2 हो गया, ठीक है, ये हमारा केस 2 हो गया, ये केस 1 था। अब हमें एक और केस देखना है, केस 3। ओके, सो सपोज कीजिए अगर हमारा टारगेट जो है वो लेस देन एरे ऑफ मिड होता, यानी कि अगर हमारा टारगेट 0 होता, सो हमें किस साइड में चेक करना पड़ता है एरे का, इस पोर्शन पे। उस केस में अगर हमारा टारगेट 9 के जगह 0 होता, सो हमें राइट में चेक नहीं करना होता मिड का, लेफ्ट में चेक करना होता। सो उस कंडीशन में हमें एंड को मूव करना होता। ओके, एंड को कहाँ मूव करना होता, मिड -1 पे, इस जगह पे हमें मूव करना होता। सो उस केस में हम क्या लिख सकते थे, एंड इक्वल टू मिड -1। तो इससे हमारे पास एक और केस आ गया, ठीक है। हमारे पास थर्ड केस क्या आ गया, केस 3 क्या आ गया, इफ आवर टारगेट इज लेस देन एरे ऑफ मिड। सो हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड ऑफ द मिड चेक कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एंड को मूव करना होगा, ठीक है। ये हमारे पास 3 केसेस आ गए। सो इस टेबल में अब क्या चेंजेस कर सकते हैं हम, हमारा एरे ऑफ मिड 2 आया था, ठीक है, और पहला कंडीशन फॉल्स हो रहा है पर दूसरा कंडीशन ट्रू हो रहा है, ठीक है। सो हमें क्या करना होगा, स्टार्ट को मिड +1 करना होगा। सो मिड +1 किए तो हमारा स्टार्टअप क्या हो गया, 3 हो गया, एंड जो है वो 5 ही रहेगा। ओके, सो नाउ अगेन कैलकुलेट मिड। सो मिड क्या होगा, 5 + 3 8/2। अब हमारे पास क्या आया, मिड 4 आया, ठीक है। अब हम ये तीनों कंडीशन चेक करेंगे। पहला केस जो है एरे ऑफ मिड इक्वल टू टारगेट। सो एरे ऑफ मिड क्या है, हमारे पास 4 है, ठीक है। एरे ऑफ मिड यानी कि एरे ऑफ 4 हमारा 9 है। सो हमारा पहला केस सेटिस्फाई कर रहा है, टारगेट के इक्वल हो जा रहा है। सो उस केस में हम क्या कर देंगे, रिटर्न मिड कर देंगे। सो इस हमारा आउटपुट क्या हो गया, आउटपुट हमारा 4 हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी विल राइट द कोड। हमारा स्टार्ट जो है वो 0th इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है और एंड लास्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। ओके, अब हमें क्या करना था, अब मिड कैलकुलेट करना था। सो मिड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास है स्टार्ट प्लस end/2, ठीक है। मिड कैलकुलेट करने के बाद हमें वो 3 केस चेक करने। सो पहला केस क्या था, इफ टारगेट इक्वल टू एरे ऑफ मिड। सो उस केस में क्या करेंगे, हमारा सर्चिंग कंप्लीट हो जा रहा है, हमें टारगेट मिल गया मिड पे। सो हमें इंडेक्स रिटर्न कर देना है सिंपली। ओके, ये पहला केस था। सेकेंड केस क्या था, अगर हमारा टारगेट वो ग्रेटर देन है एरे ऑफ मिड से। सो उस केस पे हमें क्या करना था, राइट साइड में चेक करना था। तो उसके लिए हमें स्टार्ट इक्वल टू मिड +1 करना पड़ेगा। ओके, और तीसरा केस क्या था हमारे पास, अगर हमारा टारगेट लेस देन है मिड से, एरे ऑफ मिड से। तो हमें क्या करना था उस केस में, एंड को मिड -1 कर देना था, क्योंकि हमें अब लेफ्ट साइड में चेक करना है। ओके, सो यहाँ पे मैंने ऐसे नहीं लिखा है एल्स इफ करके, मैंने डायरेक्ट एल्स एंड इक्वल टू मिड -1 किया। क्यों किया, क्योंकि अगर पहला कंडीशन फॉल्स है, दूसरा कंडीशन भी फॉल्स है, तो तीसरा ट्रू होगा ही। ओके, सो यू कैन राइट दिस डायरेक्टली। ओके, अब हमें एक चीज यहाँ पे देखना है, ये तीनों केस को हमें कब तक रिपीट करना है, हमें कब तक रिपीट करना है, while our start is less than equal to end, ठीक है। सो मैंने एक while लूप लगा दिया। हमें ये तीनों केस को तब तक रिपीट करना है जब तक हमारा स्टार्ट जो है वो लेस देन है एंड से। अगर हमारा स्टार्ट इंडेक्स जो है वो क्रॉस कर जाता है एंड इंडेक्स को, तो हमें रोक देना है। ओके, अब हमें क्या करना है, अगर हमारा while लूप कंप्लीट हो गया, ओके, हमें टारगेट नहीं मिला, यानी कि रिटर्न मिड नहीं हुआ। सो इसका मतलब टारगेट जो है वो एरे में नहीं है। सो उस केस में हमें क्या सिंपली रिटर्न करना है, -1। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। अब हमें एक चीज यहाँ पे देखने का होगा, यहाँ हमें क्या दिया गया क्वेश्चन में, द एरे इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो हमारा जो है वो एरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। सो हमने ये 3 केस उसके हिसाब से लिखा है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया रहता,
सो हमें ये केसेस को चेंज करना पड़ता। ओके, सो सिंपली उस केस में आपको क्या करना पड़ता, सिर्फ यहाँ पे चेंज करना पड़ता। इफ टारगेट इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ मिड, देन आपको क्या करना पड़ता, एंड इक्वल टू मिड -1, एल्स में मिड +1, स्टार्ट इक्वल टू मिड +1। ओके, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, असेंडिंग ऑर्डर में। सो ये हमारा 3 केसेस होंगे और हमें रिपीट तब तक करना है जब तक स्टार्ट लेस से एंड से छोटा है। ओके, और लास्ट में रिटर्न -1 कर देना इफ वी विल नॉट एबल टू रिटर्न मिड। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ रन दिस कोड। Accepted. Now submit it. Yes, it is submitted. I hope you like my video. Please like and share my video and subscribe my channel. Bye.